گورنر صاحب، آپ کیونکہ وفاق کے نمائندے اور نون لیگ کے ایک سرکردہ رہنما بھی آپ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے ملکی یکجہتی کی، بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی، تو قیدی نمبر 804 کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ملکی سیاست کو ایک نیا رنگ کیوں نہیں دے دیتے؟ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی معاملات کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ یہ زیر التوا عدالت میں مقدمہ ہے، ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ اپنی پیروی بہتر کریں۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے قیادت میں ایک قرارداد پاس کیا اور تعین کیا ہمارے آج کے آپ کے اور ہماری زندگی کے اور منزل کے لیے، اور الحمدللہ 7 سال کے قلیل جد و جہد کے بعد ان اکابرین نے دنیا کا پہلا ایک عظیم الشان اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ تو آج ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں۔ آج ان سب کی جد و جہد کو ہم خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں، اور آئیں آج ہم مل کے عہد کریں کہ جو بنیاد ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے رکھی تھی اس کی منزل ابھی آگے ہے، اور وہ بنیاد تھی اس خطے کو، مملکت خداداد پاکستان کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی طور پہ استحکام دیں، تمام زبان، کلام، لسان سے بالاتر ہو کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہم عظیم الشان ملک ہیں۔ آئیں، آج سے 14 سال بعد 2040 آنے والا ہے، مل کے ہم آج سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس کی خوابوں کی تعبیر دیں گے، اور یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کے دن کا عنوان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے، تا قیامت آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے، آپ کے لیے سلامتی ہو، تاکہ ہمارے سیاسی اکابرین کی ارواح خوش ہو کہ ان کے بعد ان کی نسلوں نے ان کی امانت کو سنبھال کے رکھا۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ میرے طرف سے بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ 2026 کو یوم پاکستان کے موقع پہ میں گورنر صاحب اور اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ قائد اعظم گورنر صاحب، آپ کیونکہ وفاق کے نمائندے اور نون لیگ کے ایک سرکردہ رہنما بھی آپ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے ملکی یکجہتی کی، بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی، تو قیدی نمبر 804 کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ملکی سیاست کو ایک نیا رنگ کیوں نہیں دے دیتے؟ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی معاملات کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ یہ زیر التوا عدالت میں مقدمہ ہے، ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ اپنی پیروی بہتر کریں، تاکہ عدالت ان کو اگر بے گناہ سمجھے تو انہیں معاف کر دے۔ یہ سرکار کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ جی سی ایم صاحب، یہ عدالت باعزت بری کرتی ہے یا سزا دیتی ہے؟ معاف کرنا تو حکومت کا کام ہے۔ دیکھیے، جب ایک چیز مقدمہ زیر سماعت ہے، میں خود ایک وکیل ہوں، تو ہم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ پروسیس اس وقت تک ہمارے پاس ہوتی ہے جہاں تک وہ چلان نہ ہوا ہو۔ چلان ہو گیا، ایویڈنس چل گیا ہے، تو آپ کو اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے فیصلے کا۔ سی ایم صاحب، یہ بتائیں کہ جنگی ماحول کی بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنی قدرتی گیس وفاق کو دے دی، اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو پتہ ہے جنگی ماحول چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں نہ صرف گیس کا بحران زیادہ پیدا ہو رہا ہے بلکہ NLG کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ سندھ کیوں سفر کرے جہاں گیس سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ نہیں، قدرتی گیس وفاق کو نہیں دی، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وہ گیس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور پہلی پرائرٹی اسی صوبے کی ہوتی ہے، اور اسی پرائرٹی کے تحت چل رہا ہے معاملہ۔ اس موقع پر ہم خاص طور پہ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہ ہو۔ ہم اس وقت میں نے بات کی کہ ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو آپ کا سوال میرا خیال ہے
बनता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि- लोग कह रहे हैं ना, नहीं, लोग के मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है, सबसे बिल्कुल ज्यादा होती है। लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती बिल्कुल है। नहीं, ये जो सारे लोग मुल्क सफर पे कर लोग- रहे हैं सारे वो मुल्क गलत पे- कह रहे हैं। आर्टिकल सारे मुल्क पे 158 का लोड हवाला सर आप देते रहे ना, 158 का। आप खुद मैं कह रहा हूँ कहते रहे लोड कि शेडिंग जहाँ जो है सिंध की गैस गैस पैदा की होती है, कमी वो की सिंध के वजह से लोगों को हर मिलनी जगह हो रही चाहिए। है, हर और जगह आप हो रही है। कह रहे हैं अच्छा कि नया साहब, ये इस्लामाबाद गवर्नर साहब में- ये फरमा दीजिए, आप जब से आपने हल्फ उठाया, आपने बारहा कहा है कि मैं आइनी गवर्नर हूँ, आइन, तो क्या इससे पहले साबकीन गवर्नर गैर आइनी थे? दूसरी बात ये फरमा दीजिए कि बहैसियत गवर्नर आप मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है एक आप गैर सियासी आप शख्सियत हैं, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, तो उसकी रुकनीत से या उससे लाताल्लुकी कब करेंगे? नून लीग से काजी साहब बहुत अच्छा सवाल है। हर दौर के गवर्नर जो हैं वो आइनी गवर्नर हुआ करते हैं, मगर उन्हें समझना चाहिए कि मैं आइनी हूँ। मेरी सियासी नुमाइंदगी और अवामी नुमाइंदगी हमारे सीएम मुराद अली शाह कर रहे हैं और इन्हीं का किरदार है। तो इनसे आप अवामी और सियासी बातें करें, मुझसे आइनी बातें करें। जहाँ तक मैं मुस्लिम लीग का है तो मुझे फ़ख्र है कि मैं बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे शाह साहब ने कहा तो आज यकीनन हम उन सबको खिराज तहसीन पेश करें। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, डॉक्टर कदीर साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अरबों डॉलर को ठुकराया और अपने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया। तो हम उनकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा काम है इक़्तिदार की सियासत नहीं, पाकिस्तान को मजबूत करने की सियासत, पाकिस्तान को मुंतशिर करने की सियासत नहीं है। साबकीन जो है वो गैर आइनी तो नहीं थे? सब आइनी थे, मगर जो अपने आप को आइन से बालातर समझे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आइन के डोमेन में रहना चाहता हूँ। मेरा किरदार जो सियासी और अवामी है शाह साहब अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। सीएम साहब ये बता दीजिएगा, नून लीग के गवर्नर आपके साथ मौजूद हैं, पहले एमक्यू के गवर्नर थे, कोई सिंध में खासे प्रोजेक्ट वफाक की तरफ से सिंध को नहीं दिए गए, अभी तवक्को करते हैं कि नून लीग के गवर्नर आने के बाद देखिए जैसे गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, हम ज़रूर गवर्नर साहब की मदद हासिल करेंगे और उनकी ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जिनकी वफाक में हुकूमत है, और मुझे पूरा यकीन है गवर्नर साहब अपना सूबे सिंध के लिए वो किरदार अदा करेंगे और इसकी बात वो कह भी चुके हैं। मैं ये बता दूं, और ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, कि ख़ास तौर पे 2018 से लेकर 2022 तक वो, और ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप समझें, जब गवर्नर साहिबान PTI के होते थे तब भी यही कहता था मैं कि हमें वफाक की तरफ से वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। और 2022 के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने वो जो, और मेरी डिमांड यही थी कि जो 7-8 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस बैकलॉग को अब पूरा करें, उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स दिए। हमारी डिमांड और भी है, और वो जो जायज़ हमारी डिमांड्स है उनके लिए सूबे के लोगों के लिए मैं हमेशा बात करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। इस वक्त ख़ास तौर पे मैं कोई ऐसी बात इसलिए नहीं करूँगा कि इस वक्त जिस सूरत हाल में हम हैं हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और ये सियासी बातें या सियासी बातें मैं कहूँगा जो ये बातें वो जब मेरी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मैं उनसे ज़रूर जिक्र करता हूँ। हाशमी साहब ये फरमा दे, 1 मिनट हाशमी साहब 1 मिनट तक लेना। वफाक ने हाशमी साहब मुझे ये बता दें, एक आदमी कर ले जो भी। हाँ प्लीज़ हाशमी साहब, आपकी मौजूदगी में एक मकाम पर जिसको सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड किया, उस वाक़े ने थप्पड़ की गूंज या बाज़गश सुनाई दी थी, आपकी तरफ से कोई इसको मौक़िफ़ नहीं है कि आप इसे कोट कर रहे हैं, मामला क्या था इस पर ज़रा आप कितनी गालियाँ पड़ी? मेरे इल्म में तो कोई ऐसा मामला नहीं। एक बात जो अभी सीएम साहब ने कहा, हाँ मेरा किरदार तामीरी होगा और मैं इस सूबे का गवर्नर हूँ तो मैं अपने सूबों को तरक्की दिलाने में अपना सारा किरदार अदा करूँगा। सब चीज़ यहाँ नहीं होगा, आगे रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सियासी आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि अपने लोगों की खिदमत करना है। हमारे सियासी मंशूर अलग ज़रूर हो सकते हैं, मगर हमारा जो सूबाई मंशूर है वो ये है सिंध की तरक्की। और यही बात मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये हिदायत दी है कि आप अपने सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई कसर ना छोड़ें। साहब आपने कहा अच्छी बात है कि वफाक से बात की,
वफाक ने सिंध को 56 मनसूबे दिए, सुकड़ते सुकड़ते वो अब 11 बन गए। 11 की भी जो उन्होंने अब तक 6 माह गुजर चुके हैं, आधा साल हो गया, उसमें भी कोई 17-18% उन्होंने जारी किया है। क्या इस सिलसिले में नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले ख़त भी लिख चुके हैं कि जी जो NHA के मनसूबे इतने हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान या इवन कश्मीर से भी कम सिंध को दिया गया। इस सिलसिले में आप नहीं समझते? मैं आपको कहूँ कि हर मौके पे, हर फोरम पे ये बात मैं करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त इस बात को ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं। मैं बड़े हर फोरम्स पे कर चुका हूँ और इसी वजह से कुछ लोगों को नापसंदीदा भी कुछ लोगों का होता हूँ कि ऐसे फोरम से बात कर लेता हूँ। सो वो आप जानते हैं जो मंसूबे, और मैं फिर से कहूँगा कि मैं मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि 2022, 23 और 24 में वो मंसूबे जो ख़त्म कर दिए गए थे उनको दोबारा रिवाइव भी किया, उनके लिए मुनासिब रकम भी रखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारी डिमांड है वो पूरी हुई है लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुनासिब रकम रखी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए वही जंग चलती रहेगी। इस वक्त जो माहौल है उसमें कोई ऐसी एडिशनल डिमांड करना, वो बजट का टाइम आएगा और हम सूरत हाल देखते हुए ज़रूर अपने सूबे के लिए। इसमें मैं एक ऐड कर दूं कि पहले शाह साहब अकेले आपकी जंग लड़ रहे थे तरक्की और खुशहाली की, अब हम मिल के लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हम दोनों मिल के आपके हक और आपकी जद्दोजहद की बात करेंगे। अच्छा शाह साहब, अब ज़ाहिर कमिंग बजट आने वाला है, तो अब ये जो माहौल भी चल रहा है, क्या खसारे का बजट ज़ाहिर लाजमी तौर पे उसमें आपको मुश्किलात होंगी, उसमें NFC की कटौती भी है, तमाम चीज़ें, उसको कैसे मेकअप करेंगे? ये देखें, इस पर बातचीत चल रही है और इस सिलसिले में वफाक के साथ चारों सूबों की मीटिंग्स अगले कुछ दिनों में भी एक मीटिंग होनी है जो कि इन चीज़ों पे नज़र रखेगी। और इस ख़ास तौर पे इस जंग के माहौल में जब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब ने मिल के, वफाक ने, सूबों ने, इस मुल्क के लोगों ने, हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अगर हम कायदे आज़म के पहले उसूल यानी यूनिटी पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम कायदे आज़म का जो ख्वाब है, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है, उसको नुकसान पहुँचा। अच्छा सर, तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल को देखते हुए फैसले करेंगे, लेकिन ये आप यकीन रखें कि सूबों के हकूक़ पे, सूबा सिंध के हक़ पे कभी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माहौल को देखते हुए, हालात को देखते हुए इस मुल्क को मुत्तहद रखने में, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा भी डालेंगे और अपना हक भी लेंगे। गवर्नर साहब ये बताएं कि क्या आप भी सिंध तोड़ने की बात करेंगे? इससे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने गवर्नर हाउस में ऐसा कुछ किया जिससे सिंध के अवाम ने बड़ा रद्द अमल जाहिर किया। आप भी उसी नक्शे कदम पे हैं या आप कुछ और करेंगे? हम पाकिस्तान और सिंध, जैसे CM साहब ने कहा कि सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद पास की थी, तो जो असेंबली पाकिस्तान की करारदाद पास करे उसको अल्लाह और तरक्की दे, खुशहाली दे, उसके लोगों को दे, खुशहाली दे। आपको लिए आज का यही पैगाम। शुक्रिया सर।